Good morning, students. This is KK Bhatt here from LPM Public School. Dear students, we are here to take the topic of voice. In the previous video, you have read what is active voice, what is passive voice, as well as I have also taught you how to change present indefinite tense into passive voice. In the previous video, you have seen many examples. As well as yesterday I taught you present continuous tense. It means you have read present continuous tense yesterday. In the sequence of that, I am here with the third part of passive voice. Today I am going to discuss present perfect tense. Dear students, you know well that present perfect tense, the helping verb of present perfect tense has or have. I know well that in previous classes, every student did it very well, and distance revise in your life from 6 to 7 years. Now in the sequence I am just going to revise. If I say that it is your additional video, it is going to revise. There is no mistake. But here it is in your course. That is why we had to taught you. So you see here that helping verb is has and have in active voice. It is clear? Whenever we are discussing what is active voice, okay, we are just identify the tense with has and have. Has and have से हम tense को क्या करते हैं? Identify करते हैं. Then whenever this helping verb change into passive voice with has and have, been has been used. यानी has have के साथ हम क्या use करते हैं? Been use करते हैं. It is very clear. It is clear. It means been is used in passive voice in the sentence of present perfect tense. Dear students, so I hope it is clear. Now what is the helping verb of present perfect tense? Has and had. In passive voice, has, had plus been. Listen now, see here the structure of active voice and passive voice. With the structure of this, you can able to change the sentence into passive voice. See how? See here, active voice. First we write the subject. You know what is subject? And then after we use helping verb. We use helping verb has or had. Then after the student we use third form of verb. At last we use object. You know well that without object there is no passive voice. So object is compulsory. So object is compulsory to make passive voice. Now look here. Now see here. This is the format of active voice. And now we are going to change this structure into passive voice. So first of all, what we do? You know well that subject and object both interchange their place. Both interchange their place. It means subject take the place of object and object take the place of subject. See here in the structure, in this structure. You can see here what is passive voice. Here object take the place of subject. It means object change into subject. Be careful. Object change into सब्जेक्ट. यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट सीधे जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है. तो जैसे मान लीजिए सेंटेंस, अगर सेंटेंस में आपके दे दिया है ऑब्जेक्ट दिया है मी, तो इसको आप आई में कन्वर्ट करेंगे. मी दिया है तो अगर हंस दिया है तो बी चेंज टू बी, उसको वी में आप कन्वर्ट करेंगे. ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि मी आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, आपका सब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं होगा. वी हैव टू चेंज the objective case into possessive, into subjective case, and subjective case into possessive. It is compulsory to change it. You know well that you have read in pronoun what is subjective case and what is objective case. So there you have read that he change into him, she change into her, they change into them, I change into me, we change into us, you change into you. These are the format
विच वी हैव टू गो थ्रू। हमको ये फॉर्मूला जिसके द्वारा हमको जाना हो। अब आगे आप देखो, नाउ से हियर द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट वेल। आप देख सकते हो यहाँ पे मी को आपने आईडी चेंज किया, अस को आप अगर ये ऑब्जेक्ट भी है तो सब्जेक्ट आई होगा, अस है तो दी होगा, और ऐसे भी जो होगा अस हो जाएगा, आई जो होगा दी होगा। इस तरह से अगर आप डी को लेते हो तो डी का क्या होता है, हिम होता है, और हिम का ही होता है। सी को अगर लेते हो तो सी का हर होता है, एंड दे को लेते हो दे का क्या होता है, ई को दे का देम होता है, एंड ई को लेते हो तो इसका ई। तो इस तरह से आप यू को ले सकते हो, यू में भी कोई सेंसर नहीं होता, यू का यू होता है, यू। तो ये चीजें जो है पोसेसिव प्रोनाउन यानी सब्जेक्टिव केस को हमें ऑब्जेक्टिव चेंज में करना, ऑब्जेक्टिव केस को हमको सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना। लेकिन मान लो राम है या सैम है, कोई नेम है, तो उसमें कोई चेंजेस आप नहीं करेंगे। दिस चेंज ओनली फॉर प्रोनाउन। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू एग्जाम्पल। थ्रू एग्जाम्पल इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। आपको कैसे इसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इसको आप देखो बेटा यहाँ पे सपोज दैट इफ आई राइट ए सेंटेंस हियर लाइक दैट, they had done their work. They had done their works. They had done their works. Be careful here. Their works. ये क्या है, possessive pronoun है their, और works क्या है, noun है। ये दोनों possessive pronoun और ये works, ये दोनों मिलकर के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये पूरा जो सेंटेंस है वो यहाँ आ जाएगा, और ये सेंटेंस कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मतलब बोथ इंटरचेंज देयर प्लेस, बोथ इंटरचेंज देयर प्लेस, दोनों अपने स्थान को क्या करेंगे, बदल देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल इसको मान लीजिए अगर आपको पैसे बनाना है तो क्या करेंगे आप, देयर वर्क्स को आप पहले लगाएंगे, यहाँ हैव आप लगाएंगे, हैव के बाद क्या लगाएंगे, पैसिव वॉइस में क्या होता है, यू नो दैट हैव के बाद आप क्या लगाते हैं, बीन। वी यूज हियर बीन, देयर वर्क हैड बीन डन। ध्यान से देखो, डन बाय। अब दे को मैंने भी आपको बताया है कि दे का जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दे का ऑब्जेक्ट होता है दे। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दे। व्हाट यू अंडरस्टैंड, देयर वर्क हैड बीन, देयर वर्क हैड बीन डन बाय दे। अब ये दे में इधर आता है तो देयर दे हो जाता है। इट इज क्लियर। तो ये तो था आपका एक सिंपली एग्जांपल कि हाउ वी विल चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव सेंटेंस। जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर अ सिंपल सेंटेंस। अब आप देखेंगे इसको दूसरे फॉर्म में अगर देखते हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा सेंटेंस अगर कोई लिखता है, सी हैज done, she has done her homework, she has done her homework। अब यहाँ देखिए she has done her homework, यहाँ पे homework क्या होगा, play as a object, जो हर होमवर्क को क्या कर रहा है, प्ले एज ए ऑब्जेक्ट। सी जो है आपका ये क्या है, सब्जेक्ट रूप में यूज कर रहा है। तो सी को अगर आप चेंज करते हो पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाएगा, सी का क्या होता है, हर होता है। जैसा कि अभी आपको मैंने समझाया। अब बेटा यहाँ पे अगर आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो आप हर लगा सकते हो, हर होमवर्क लगा सकते हो, और होमवर्क यहाँ हैज बीन लगा सकते हो, हैज बीन। डन का थर्ड पार्ट डनी होता है, डन हुए। What you understand here? See here, what you see here, just to their work had, यहाँ है they had done their work। आपने क्या देखा, their work को हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रूप में यूज किया, their work had been done by them। यहाँ पे she had done her homework। अब यहाँ पे देखिए her homework, possessive pronoun यूज हो रहा है यहाँ पे, her homework, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ नाउन और पोसेसिव दोनों, ये तो क्या हो गया, हर होमवर्क क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट।
अब यहाँ पे हैज में लगा दोगे डन बाय। देखो ध्यान से सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड, हर होमवर्क हैज बीन डन बाय। ये तो था बेटा आपको पैसिव वॉइस, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर सेंटेंस। एक और सेंटेंस आप देख सकते हो, जैसे लिखा जा रहा है कि राम हैज completed, Ram has completed, Ram has completed the given work, the given work। अब ध्यान से देखो यहाँ पर राम has completed the given work। given यहाँ पे वर्ब फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, the given work has been completed by राम हो जाएगा। यहाँ देखो राम को हमने जो है हिम ने कन्वर्ट किया क्योंकि नेम है, तो नेम में आप कोई सेंसेस नहीं करोगे। तो आप देखोगे राम हैज कंप्लीटेड द गिवन वर्क, ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस द गिवन वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय राम। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल हाउ the sentences change into passive voice. Now I am just going to tell you interrogative sentence, then after negative sentence, then after interrogative sentence. Now see here negative sentence. तो आप नेगेटिव सेंटेंस में देख सकते हो क्या होता है। जैसे मान लो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। आप देख सकते हो सब्जेक्ट इसमें आप लगाओगे हैज या हैज, जैसा आप आज यूज करते हो तो उसको करोगे। यहाँ पे आप नॉट लगा दोगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस, ये तो हो जाएगा आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद अगर इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में देखो ऑब्जेक्ट को जैसा कि आप वहाँ करते थे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करोगे, और ध्यान देना हैज या हैड लगा। उसके बाद नॉट, नॉट के बाद ध्यान, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बीन के बाद नॉट लगाते हैं। तो देखा है बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बीन के बाद नॉट लगाते, बिल्कुल गलत होता है। नॉट जब भी आप लगाओगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाओगे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाय, देन आफ्टर सब्जेक्ट टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हैज है, नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे हैज अप यूज करेंगे, और फिर आपका नॉट बीन सब और थर्ड फॉर्म। देखो एक एग्जांपल, जैसे मान लो सेंटेंस लिखा जा रहा है RSPA, Riya has not written her notes। Riya has not written her। अब यहाँ पे क्या हर नोट क्या है, हर नोट्स क्या है, यहाँ पे एक्टिव है, यहाँ का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे हर नोट्स had not been written by Riya, right? ठीक है, तो इस तरह से आप लिखोगे a note had not been written by Riya। Now see here the next example, दूसरे एग्जाम्पल को आप देखने की कोशिश करो। See here the next example, Shailaja has told Shailaja has not लगाओगे ना, use here not। Shailaja has not
Shalja has not told you. 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 अब यहाँ पे देखोगे you जो है आपसे कह रहा ऑब्जेक्ट, इसको अगर आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो क्या हो जाएगा, you आपके यहाँ हो जाएगा, इसके साथ आप had लगाओगे, you had not been, क्या हो जाएगा, you had not been told, you had not been told by Shalja, Shalja, you had not been told by Shalja. So I think it is clear how to change negative sentence into passive voice. अब हम इंट्रोगेटिव, we are going to talk about इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं, उसका स्ट्रक्चर हमें जो कैसे चेंज होता है. You know that इंट्रोगेटिव सेंटेंस that is two kinds. One start with capital verb, other start with question. Here I am giving a complete structure of both part. Say here how. सबसे पहले आप देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखो, सॉरी आप चाहो तो यहाँ पे सब दोनों एक ही साथ तो क्वेश्चन वर्ड को पहले ला दो. यूज हियर क्वेश्चन वर्ड. क्वेश्चन वर्ड्स की आप लगा सकते हो हैज या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट लगा दो नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये तो हो गया आपका एक्टिव वॉइस. क्लियर. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे. उसके बाद अगर हैज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज वेरी कंपल्सरी, ठीक है. अब इसी को अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप, वही चीज करोगे आप. सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड यूज करोगे. ध्यान देना यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले आप अरेंज करोगे, यानी यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड्स होगा, फिर हैज या हैव होगा, फिर ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे, सब्जेक्ट को चेंज करोगे, प्लस नॉट लगाओगे, प्लस बीन करोगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट को आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट. ठीक है. इट मींस सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, हैज या हैड यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, नॉट बीन थर्ड फॉर्म बाय, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट. इतना करने के बाद अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना. जैसे मान लीजिएगा व्हाई हैड यू not, why had you not called मोहित, मतलब आपने मोहित को क्यों नहीं बुलाया, why had you not called मोहित, आपने मोहित को क्यों नहीं बुलाया. अब आप देख सकते हो जैसा कि मैंने पैसिव वॉइस में बताया, why को आप चेंज नहीं करोगे, why रहेगा, या मोहित के अकॉर्डिंग या हैज जो होता है वो हैज में चेंज होगा, क्योंकि मोहित यहाँ क्या है, सिंगुलर नंबर, ठीक है. इसके बाद वाई हैज मोहित, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, वाई हैज मोहित नॉट बीन, यूज हियर बीन, कॉल्ड बाय यू, पे कोई चेंज नहीं, बाय, क्या हो जाएगा, वाई हैज मोहित नॉट बीन कॉल्ड बाय यू. Students, I think it is clear to all. Thanks to watch my video.